हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। इट्स मी विद यू तनीषा और आज हमारे साथ हैं रुपया पैसा डॉट कॉम के एमडी मिस्टर मुकेश पांडे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। Thank you, Tanisha. Thank you for inviting me. सर रुपया पैसा डॉट कॉम साहब like, नाम से समझ आता है कि इट्स ऑल अबाउट मनी एंड इट्स अबाउट Yes. द पेमेंट्स एंड द सेंडिंग रिसीविंग आई गेस। सर कैन यू प्लीज इवेलुएट रुपया पैसा डॉट कॉम? व्हाट इज द कंपनी? RupiaPaisa.com. यस। Yeah, we are a financial consultant with having more than 20 years experience in this domain. And हम MSMEs को especially cater करते हैं and help them raise working capital loan for their businesses through our network of 50 plus bank and NBFCs. So we understand their requirement and we help them gain secured loan or unsecured loan, any kind of working capital loan, if any business is looking for their business expansion. सर आपने एमएसएमई का नाम लिया लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में। थोड़ा आप इसके बारे में इवैल्यूएट करेंगे। एमएसएमई सेक्टर्स लाइक कैन यू प्लीज इवैल्यूएट इट अबाउट? बिल्कुल, MSME means micro, small, and medium enterprises. Any businesses which are running their business, maybe they are trader, service, or manufacturing. उनकी turnover and उनके कुछ certain parameters के हिसाब से we have classified them to be very simple. जो business जिनकी turnover is less than 5 crore, they are considered as micro enterprises. 5 crore, 1 lakh to 50 crore, they are considered as small enterprises, and turnover having more than 50 crore and up to 250 crore, they are considered as medium enterprises. So this is the definition of MSME. तो सर रुपया पैसा डॉट कॉम बेसिकली उसका यूएसपी क्या है? कब शुरू हुई और ये आइडिया कैसे आया कि आपको इसे शुरुआत करना है? क्योंकि सर कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप या फिर कोई भी कंपनी शुरू होती है तो सबसे ज्यादा जो बेसिकली इंपॉर्टेंस रखता है वो रखता है उसका नाम। कोई भी कंपनी जब शुरू करता है बिकॉज वही पूरी कंपनी की रेपुटेशन रहेगी। पीपल विल नो अबाउट यू विद अच्छा मुकेश पांडे रुपया पैसा एमडी। सो सर Yes. yes, so this is your identity, the part of identity as our name is. Our company become our. Mhm. So, sir, can you please tell me Exactly. why you chose this name and what, like, from where you get the name? Because whenever I take an interview, I get very curious to know why people name that only. Why not other name? How many name have you? कि नहीं नहीं यार ये नहीं. This name is much better than this. So, can you please evaluate this? Because it's my The personal law. interest also. That Exactly. yeah. The logic is very simple. The name should be so simple so that there should be a recall value to it. Hmm. Considering if we are talking about MSME, any personal individual, they in their regular routine life, बात होती है यार कि there is a shortage of money या हमें पैसा चाहिए business expansion करने के लिए. तो so that the recall value of the company is so simple कि अगर कभी भी किसी को किसी भी MSME को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो इट इज वेरी इजी टू रिकॉल यार लेट्स कॉल rupiapesa.com बिकॉज नाम में ही रुपया पैसा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग देम रेज वर्किंग कैपिटल लोन थ्रू बैंक एंड एनबीएफसी एंड वी बिकॉज एक्सपीरियंस भी 20 साल से इसी का रहा है of helping MSMEs to raise working capital loan. So name was just logic was कि name should be very simple so that recall value is very good for it. सर कब शुरू हुई थी कंपनी? साल 2020 में? Private limited, I got it registered in 2020, but total experience मेरे को 20 साल का है. I started my career with banking, Okay. and then in 2010 started my business in which we have started consultancy where we help MSME to know how they can scale their business, किस तरीके की scalability हो सकती है, and in that scalability, if they need any kind of help in raising working capital loan, तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है बिकॉज मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि किस पर्पस के लिए पैसा लेना है, किस बैंक से लेना है, क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि फॉर एवरी यूनिक रिक्वायरमेंट देयर इज अ यूनिक प्रोडक्ट. तो वी हेल्प देम आइडेंटिफाई दैट यूनिक प्रोडक्ट फॉर देयर बिजनेसेस. सर आपको क्या लगता है कि लोग जब भी कोई भी बैंक से या फिर आप जैसे किसी कंपनी से पैसे लेते हैं या जो होता है, व्हाट आर द थ्री बेसिक मिस्टेक दे डू विच दे वेरी कॉमन मिस्टेक्स दे डू? बिकॉज आपने अपने इस बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में आपने अपने 20 साल दिए हैं। सो हैव सीन मैनी यस. सच थिंग्स कि लोग यही एक रिपीटेडली चीजें करते हैं एंड दे डोंट गेट द फैक्ट्स कि क्यों इस चीज की वजह से कोई चीज हो रही है एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, व्हाट शुड बी डन। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो जो सबसे बेसिक मैं बोलूंगा टॉप 3 मिस्टेक जो कोई भी बिजनेस ओनर करता है, सबसे पहले तो उसको अपने बिजनेस की कैश फ्लो के बारे में ही कोई अता पता नहीं होता कि उसका बिजनेस किस डायरेक्शन में चल रहा है. दे इवन डोंट सी देयर बैलेंस शीट प्रॉपरली, इवन दे डोंट वांट टू सी देयर बैलेंस शीट प्रॉपरली. ज्यादा इजी होगा, दे जस्ट नो कि बिजनेस में टर्नओवर हो रहा है, किताबों में प्रॉफिट है, बट एक्चुअली
अकाउंट में प्रॉफिट नहीं है। तो मेजर प्रॉब्लम विद एमएसएमई कि उनकी अवेयरनेस, उनका फाइनेंशियल नॉलेज की लैकनेस बहुत है। सेकेंडली, वो क्रेडिट वर्दीनेस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। हम्म। They don't understand what is the importance of paying your vendors on time. What is the importance of paying bank EMIs loans on time. वो उनके क्रेडिट स्कोर को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो सर वो बिकॉज क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में लैक ऑफ नॉलेज, बाद में पता चलता है कि दे आर नॉट एलिजिबल, कि अगर उनकी एक्सपेंशन करने की मंशा भी है और सारे उसके उनके पास ऑल मीन्स है कि दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस, बस फाइनली आकर के फंसते वहां पे कि दे हैव नॉट मैनेज देयर बैलेंस शीट प्रॉपरली, सेकेंडली दे हैव नॉट मैनेज देयर क्रेडिट वर्दीनेस प्रॉपरली, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे डोंट नो whom to contact. यस एग्जैक्टली। बिकॉज 50 से 60 बैंक है, दे डोंट नो whom to take, from whom to take प्रोफेशनल एडवाइस, जो उनको उनके बिजनेस को रिक्वायरमेंट को समझते हुए, उनकी यूनिकनेस को समझते हुए, बिकॉज एवरी बिजनेस इज हैविंग यूनिक रिक्वायरमेंट, यूनिक चैलेंजेस, उसके लिए एक अलग सोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मंगलवार को जो पैदा हुआ है वो मूंगा पहनेगा, बुधवार को पहना है जो पैदा हुआ है वो पन्ना पहनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जाम्पल। ऐसा है। उसके अंदर में वी विल हैव टू नो कि आपके बिजनेस के क्या गोल्स हैं, अभी किस पोजीशन पे है, अगले 2 साल 5 साल में आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या पोटेंशियल है, और उसमें फिर आपको क्या क्या हेल्प की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस तो एक छोटा सा ऑप्शन है, छोटा सा रिक्वायरमेंट है, बट उसके अलावा उनको बहुत सारी चीजें, फाइनेंशियल नॉलेज होने की बहुत जरूरत है। सर आपको क्या लगता है कि भारत में इस समय एमएसएमई की क्या करंट मतलब स्टेटस है, और कैसे फाइनेंशियल चीजों के, जैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस जो फेस करते हैं उनसे कैसे वो मतलब इम्पैक्ट होते हैं, और कैसे उसको ओवरलैप कर सकते हैं, इसका आप क्या कहेंगे? नो डाउट एमएसएमईज जो इंडिया की है, दे आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऐसा क्या तकरीबन है? तकरीबन 6.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। दे हम्म। आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 12 करोड़ पीपल इन इंडिया, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अप्रॉक्स 30% टू इकोनॉमी इंडियन जीडीपी। तो हम्म। नो डाउट जिस तरीके से एमएसएमई इंडिया के लिए बैकबोन है, उसको जरूरत यह है कि अलग अलग गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, बैंक की इनिशिएटिव के तरफ से अवेयरनेस कॉन्क्लेव्स हो, जिसके अंदर में वो किस तरीके से अपने बिजनेस की बुक कीपिंग कर सकते हैं, हम्म। किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर में हायरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस में सिस्टम एंड प्रोसेसेस लगा करके स्केल अप कर सकते हैं। बिकॉज मैक्सिमम एमएसएमई लैक इन देयर सिस्टम एंड प्रोसेस। उसमें एक आदमी बैठा है, एक लाला जी बैठे हैं, वो सारी कंपनी संभाल रहे हैं। लाला जी अगर किसी दिन बीमार हो गए, एक हफ्ता कहीं ऑफिस नहीं आए, तो सारा बिजनेस स्टक हुआ पड़ा है, पेमेंटें डिले हुई पड़ी है, बैंकों की ईएमआई बाउंस हो रही है, जीएसटी की पेमेंट डिले हो रही है। तो सिस्टम प्रोसेस में बिजनेस को लेके आना इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड फाइनेंशियल नॉलेज इज द मोस्ट क्रूशियल। बिकॉज अगर आप, इफ यू नो हाउ टू सी योर बैलेंस शीट, आपको पता है कि आपके बिजनेस के अंदर में क्या चल रहा है, हाँ। आपके बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, कहाँ पे कमी आ रही है, उसको किस तरीके से कवर अप करना है। जब तक आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा, आप कोई स्टेप नहीं ले सकते। सर एमएसएमई जो है इंडियन इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? जैसे आपने बताया 12 करोड़ लोगों को दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, बट बेसिकली मुझे लगता है ये सवाल मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आपने उसी में बता अलग अलग सेक्टर है, सब अपने अपने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके घर चल रहे हैं, सबका दिया। परिवार चल रहा है। आपने एक शब्द यूज किया था जब मैंने आपसे अभी एमएसएमई के बारे में पूछा, बैकबोन। बेसिकली सर इट कवर्स एवरी क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग। इट्स अ बैकबोन फॉर पीपल्स फाइनेंशियल हेल्थ। इट्स मेकिंग, यस। let's say wealth, sir. Basically health. If there is a good financial planning, if there is a good money in a pocket or in a bank, people are automatically healthy from there. एग्जैक्टली। Because it's वेरी ट्रू। not, because it's not only वेरी। about people, sir. Because people, if people say, sir, I agree with it. It's very like I'm not asking regarding the interview. I'm just asking in bit like a normal question from you. Health and wealth are same. I people say no, money can't buy happiness, but I guess yes, it happens. If you're not earning well, you're not able to fulfill many things which come materialistic things which help people in many things. If your person is not healthy and they need to be seen by the doctor, but if you don't have a wealth, how can that make you happy if your relatives or family is not in a good condition? So I guess if having a good financial backbone which MSME is providing for people is somewhere is like directly proportionate to the happiness. Exactly, as you said, it is directly proportionate. Health and wealth are, you can say, it is a equilibrium.
if you are having a healthy body, healthy mind, you're good at health, then you can vision your business expansion, you can vision your personal expansion also. जी। So health is more important. Apart from that, wealth give you a kind of security. हम्म। I'm not talking about money, I'm talking about overall wealth. So wealth can be considered, in wealth you can take health as a part of your wealth also, यस because यस। if you are having a healthy body, you are having a good wealth with you. गुड कोट्स टू पीपल। Yes. You can like quote it, and I will make sure कि मैं इनको slugs के way में I'll just show them to our audience. The good quotes। Sure, thank you. यस सर। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी कि एमएसएमई के लिए सबसे कॉमन मिस्टेक, जो फाइनेंशियल कॉमन मिस्टेक है, वो क्या होती है, और उसमें कैसे कोई भी बिजनेस की नीड्स को पूरा करती है, सक्सीड एंड सिक्योर्ड लोन्स वगैरह जो हम लेते हैं, इन सबके बीच में कैसे डिस्कशंस होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एज आई टोल्ड यू, एमएसएमई को पता ही नहीं है कि किस तरीके से लोन लेना है, किससे लोन लेना है, कब लेना है और कितना लेना है। एग्जैक्टली सर। बिकॉज उसके वजह से दे एंड अप लैंडिंग कि उनके ऊपर अननेसेसरी का लोन हुआ पड़ा है, उनके ऊपर वो लोन है जिसकी जरूरत ही नहीं थी, वो लोन है कि जो मतलब किसी और पर्पस के लिए बैंकों ने डिजाइन करा है और उन्होंने किसी और पर्पस के लिए लिया। फॉर एग्जांपल, अगर लॉन्ग टर्म लोन की बात करो, इफ यू अगर आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको 2 साल 4 साल 10 साल बाद रिजल्ट होगी, या 10 साल तक रिजल्ट देता रहेगा, तो यू शुड गो फॉर अ लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि आपको अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी भी देखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फैक्ट्री को 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो 10 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड में लेना विल उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी, उनके कैश फ्लो को बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगा। तो दे शुड इवेल्युएट देयर रीपेमेंट कैपेसिटी। अनसिक्योर्ड लोन फॉर अ लॉन्गर विजन, जिसके अंदर में उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लॉन्गर पीरियड के लिए लोन मिल जाता है। अनसिक्योर्ड लोन जिसके अंदर में उनको इमीडिएट कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें वो पैसा लगा करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट टू बैंक दे कैन अर्न गुड अमाउंट। और शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो दे शुड गो फॉर अनसिक्योर्ड लोन। अगर गवर्नमेंट की भी काफी स्कीम है, गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट करा है। उनकी सीजीटीएमएससी स्कीम की फंडिंग, जिसमें 5 करोड़ तक की लिमिट देते हैं विदाउट कोलैटरल, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट उसके अंदर में मैक्सिमम, जैसे मैंने बोला, एमएसएमई को नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल किस तरीके से मैनेज करना है, वो उस पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठ पाते। वो एक मेजर चैलेंज रहता है सीजीटीएमएससी फंडिंग के ऊपर। सर, आपकी जो कंपनी है rupiapesa.com, ये कैसे जो हमारे एमएसएमई है उसको सही फाइनेंशियल सोल्यूशन ढूंढने में मदद करता है? एज आई टोल्ड यू, हमारा तकरीबन 60 से ज्यादा बैंकों के साथ चैनल पार्टनर है, तो वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर देम, जिसमें हम उनको कंपेयर करके देते हैं कि किस बैंक के क्या प्रोडक्ट है, क्या पॉलिसीज है, और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या प्रोडक्ट उनको सूट करेगा। एंड आफ्टर एनालाइजिंग देयर रिक्वायरमेंट, देयर यूनिक रिक्वायरमेंट, कि किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, वी गाइड देम कि हम कितने टाइम पे किस बैंक से वो पैसा उनके लिए अरेंज कर सकते हैं, सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशन, रादर देन वो बैंकों के चक्कर काटे, धक्के खाएं, पेपर ले करके पता चला वो बिजनेस पे भी फोकस नहीं कर पा रहे और फाइनेंस भी ढंग से उस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाया। तो इट इज बेटर, जिस तरीके से इनकम टैक्स भी कोई भी डायरेक्ट फाइल कर सकता है, लेकिन फिर भी दे हायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वकील भी अगर हमने देखा, ओ माय गॉड, वकील में भी हम जाके डायरेक्ट कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हैं, बट वी हायर अ गुड एडवोकेट किसी पर्पस के लिए, सो दैट वो उस अपने बिजनेस में फोकस करे। फाइनेंशियल की जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कैश फ्लो की जो रिक्वायरमेंट है, दैट कैन बी मैनेज्ड बाय समवन एक्सपर्ट हु हैव एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन, और उनको सही तरीके से गाइड करे और उनको वो पैसा अरेंज करा के दे, सो दैट दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस अकॉर्डिंगली। सर, जिस तरीके से एमएसएमई आगे बढ़ता जा रहा है, एंड आप जैसे कि आप 60 कंपनीज के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेनी मोर टू कम। सर, आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने मतलब यू हैव गिवन योर, आई गेस योर होल करियर वाज रिवॉल्व्ड अराउंड फाइनेंस। सो आपने बहुत यस। तरीके के कस्टमर्स को भी झेला है, आप बहुत तरीके के वेरी डिफरेंट माइंड्स, एवरीवन हैव देयर डिफरेंट माइंड्स, दे हैव मनी बट दे डोंट नो हाउ टू यूज, सम हैव डोंट मनी हाउ टू यूज बट दे डोंट हैव इट। यस। वो चाहते होंगे कि पैसा कमा के कैसे करें शुरुआत, ये सब इससे होता है। इफ यू आर इन अ फाइनेंस, यू आर under gathering because crowd is just there because everyone wants to earn, they don't know the path, and if they got to know, अच्छा इनको पता है, so they will just open, they will be open book in front of you regarding their finance. सर, लेकिन जैसे कि आपने बताया एमएसएमई के लिए आप जो भी आपने अभी, हमारा फ्यूचर जो है ऑब्वियसली इट्स अ बैकबोन, हाउ यू सीन फ्यूचर, क्या आपको क्या लगता है कि साल, इफ आई से 2020 2030 में, अब मैं अगर आगे थोड़ा बढ़ूं, आने वाले 6-7 साल बाद या फिर 10 साल बाद,
आपको क्या लगता है एमएसएमई का क्या स्टेटस रहने वाला है, और आपको क्या लगता है कि इज देयर एनी चैलेंज विच दे मे फेस इन फ्यूचर ऑल्सो इफ दे डोंट गेट सोल्यूशन इन टुडेज डे? नो डाउट इंडिया का जो भी फ्यूचर अभी है, जो भी आप 2030 तक की बात कर रहे हो, तो इंडिया इज बीइंग लुक्ड एट एज अ सॉरी लुक्ड एज अ बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट प्लेस टू वर्क। यस। बट जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बैंकों का सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में अंदर में गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। बट टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी यू शुड बी रेडी, बिकॉज एक बहुत पुरानी कहावत है, इट इज बेटर टू बी रेडी रादर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, और यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी बट यू आर नॉट रेडी। तो जिस तरीके से हम पिछले पिछले 2 3 4 साल के अंदर में बार बार ही सुन रहे हैं कि यार इंडिया एक सुपर पावर बनने की ओर पे है, हमारी सेंसेक्स, हमारी इकोनॉमी से सब उस तरीके से इंडिकेट कर रही है। यू जस्ट नीड कि आपको क्या हथियार चाहिए, क्या अस्त्र शस्त्र चाहिए टू एक्सपैंड उस फ्लो के अंदर में, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, उसको जानना, उसके लिए प्रिपरेशन करना इज मोर इम्पोर्टेंट। एमएसएमई के लिए नो डाउट अगला 10 साल इज गोइंग टू बी वेरी गुड, बट उनको जरूरत है फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने की, उनको जरूरत है कंपनी में अपने सिस्टम एंड प्रोसेस को लगाने की, डिजिटल वर्ल्ड को ढंग से यूज करें, बिकॉज मार्केटिंग इज द कोर ऑफ एनी बिजनेस। उनको जरूरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपनी कंपनी के बारे में पहुंचाए, ताकि लोग अपने आप काम करने के लिए उनके पास आए। हाँ. बिकॉज अगर इफ यू आर आउट ऑफ मार्केटिंग देन यू आर आउट ऑफ बिजनेस। So I was just, when you were speaking, I was just thinking about what should I start with, because there is so many questions in my mind regarding finance. I just want to ask very, like, I'm a youth basically, sir. I'm working. I see ये भी करना है, ये भी कर लो. There is so many people like me also, or other people also, who just want to succeed. They start something, but they don't know how to, because they don't know how to manage their finance. उसके बाद क्या होता है सर कि everyone, because whenever we are starting anything, the first thing we always have in our mind is how to earn more. If we get that, then how to more. There is always a craving for more. तो सर आपको क्या लगता है कि एज अ स्टार्टअप, एंड यू स्टार्टेड योर कंपनी, एज इन योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग फाइनेंस, आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान जब अपना स्टार्टअप शुरू करता है या किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर में जाता है, तो कौन सी वो 3 मिस्टेक सबसे ज्यादा करता है? आप इस पर क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हाउ टू अर्न मोर वाला कॉन्सेप्ट ही भूल जाना चाहिए। हाँ, ये जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जिसमें आप जिसके लिए भी कर रहे हो, चाहे आप, जैसे मैं एमएसएमई के लिए कर रहा हूँ, तो हमारा मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एमएसएमई की हेल्प कैसे कर रहे हैं, और हमारे उस हेल्प की वजह से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है। बिकॉज द मोमेंट यूनिवर्स इज हैविंग लुकिंग एवरीथिंग, आपके अगर किसी सर्विस, आपके किसी एडवाइस की वजह से कभी किसी का फायदा हो रहा है, तो मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, मनी तो अपने आप आ ही जाएगा। उसके अंदर में सोचना हाउ टू अर्न मोर एक गलत है। हाँ, डू योर वर्क, जो भी आप काम कर रहे हो, विथ ऑनेस्टी, विथ इंटेंशन कि यू आर डूइंग टू हेल्प समवन, और जिससे उसका भला होने वाला है, एंड अल्टीमेटली हमारे इंडिया का भला होने वाला है, हमारे लोगों का भला होने वाला है, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके एम्प्लॉयज का भला होने वाला है। तो दैट इज द मेन थिंग। ये बाकी फाइनेंस को मैनेज करना इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके लिए अगर बात करूंगा तो हमारे को हमेशा अपने इनकम को 3 बकेट में बांटना भी चाहिए। पहला जो करंट खर्चे हैं, दूसरा हमारे फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग, एंड तीसरा कुछ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि व्हेन यू वर यंग, मतलब मोर हम्म। when you were in your 20s, or when you started with a mindset कि I want to be this, so what was your mindset? आप, obviously sir, everyone do mistake, maybe you have also, that's why experience, because experience is a thing from which we gain what not to do and what to do. So sir, when I when I started my career, मतलब I will say God has been very kind with me. okay. I started my career with American Express Bank, and close तरीके से रहा। The moment I started my career, intention was to help, whatever work I am doing, I have to be best at that, चाहे मैं जॉब में हूँ। उसके बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थे कि जिसमें आई वाज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू मीट lot of people, understand them, their unique requirement, and provide solution according to what we are having in our bank.
तो उस तरीके से जर्नी शुरू रही, हमेशा से वही रहा कि उनको जो भी ऑप्शन, जो भी सजेशंस, जो भी प्रोडक्ट एडवाइस करना है वो उनके फायदे का होना चाहिए, रादर देन ये नहीं कि हम अपना टारगेट, अपनी सेल्स टारगेट कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। एंड थ्रू दैट आज जो 2004-5 से मेरे साथ जो क्लाइंट जुड़े हुए हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आई हैव नेवर बीन dishonest with them. I have never advised something which is not fruitful for them. सिर्फ अपने फायदे के लिए कोई ऐसा एडवाइस नहीं करा। तो बिजनेस के अंदर में हमेशा यही रहना चाहिए कि वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सर रुपया पैसा, दैट वन थिंग, यस यस यस। that is the main crucial thing which should be kept in mind. सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि rupiapesa.com का मेन यूएसपी क्या? आई नो इट्स मेन यूएसपी इज टू हेल्प एमएसएमई सेक्टर्स, बट देयर इज मे बी other USPs also, like to help people with their financial needs, how to manage uh, uh, their incomes and matlab their finance, how to manage that, their budget. Yeah, USP, if I'll say USP, we are almost 20 years in this business. And we have served more than 10,000 SMEs till date, more than 10,000 SMEs. We are doing business across India. So USP, we are giving a problems, we are giving a solution to the problem what MSMEs are having. We are not selling any product first. And in the process, if they need any advisory ki how to get loan, from whom to get loan, so we help them avail that loan also. Apart from that, in the beginning, मैंने बताया, I'm also having a magazine by the name MSME Insights. ओके ओके, हाँ। MSME Insights is a magazine जिसके अंदर में हम MSME के अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग सक्सेस स्टोरीज, अलग अलग बिजनेस की जर्नी को हम उसके अंदर में शोकेस कर रहे हैं, सो दैट पीपल हु आर रीडिंग दोज मैगजीन गेट इंस्पायर्ड, get knowledge, get idea how to implement that bits and facts in the business, so that they can also improve their business scalability opportunities accordingly. So there's a question to you regarding everything, like it's a personal question, basically not regarding the company and the SMS. Sir, I just wanted to ask what inspired you, because you've given your 20 years. It's very curious for me to know ki what inspires you, and tell me the person who inspired you in your journey. Like hota hai na, sir, you have seen many people come, grown, succeeded, failed more than us, because you've given your 20 years, so you were around it. So who inspired you and who inspires you still? Is there any inspiration? There are many inspiration. In 2008, when when I left my job and started my business, तो 2008 में ना recession आया था, if you remember, global recession था, and there were many MSMEs जो कि बहुत ही खराब सिचुएशन में थे, उनकी क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा खराब हो गई, एंड दे वर एग्जैक्टली नॉट अवेयर कि अब उस टाइम पे करना क्या है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि let's start my consultancy business where I will help them understand their unique challenges, will help them understand how they can scale their business from that point of time, will help them to understand the business financials, credit worthiness importance, scalability importance, hiring process, everything. So through that was the inspiration. My mentor at that point of time guided me. You are very good at communication and convincing your customers. So you should start your own. And after leaving the job, I was getting opportunity to work with n number of banks also, because as I've told you, different banks have different product, different policy. So being in a job, I am restricted to sell that bank product or services only. But if I'm a channel partner with more than 60 plus bank, I'm having an option to advise which product is best for the customer according to their unique requirement, so that they can make most of that product or services in their business scalability. So basically that inspired you, sir. Yes. दिस इज बेसिकली ना, क्या होता है कि जब हम जैसे जब हम सोचते हैं यार अपना कुछ शुरू करते हैं, लेकिन यही एक रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। एवरीवन इज लाइक चलो जॉब है, आएंगे करेंगे, अगर कुछ वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ होगा कंपनी पे होगा, हमें तो पैसा मिलेगा, ये माइंड सेट होता है। दैट्स व्हाई मुझे लगता है देयर इज सो मेनी पीपल हु टेक अ बैक स्टेप जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। यार डूबा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं डूबा तो मेरी, क्योंकि सबको लगता है आज शुरू कर दिया है, एक हफ्ते में बस प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। आई गेस व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, एज यू सेड, द फर्स्ट थिंग पीपल शुड rid off from their mind is that more and more, how to get more, like not
You should always start with a passion rather than earning money, because if you follow a passion, you will. Exactly. So sir, when you Exactly. Passion is more important. yeah, so sir, when you Money will follow you. money is a follower. You should there is a social media, na, so that you follow then the followers. You should follow the passion. Follow will be the money. So we get Exactly. quotes from it. But I'll mention you have given so many good lines and quotes to us that unka hona hi people will get inspired. Because I Thank you. Thank target for this interview is that's why I'm taking it very in a very casual manner. Why? Because my motive of taking this interview, sir, my audience targeted is everyone from 20 to 60. Everyone you. Exactly. to earn. I know. I know. Yes, sir, who is in a college, who started to do, or is in a school, because you don't know when you Mhm. first start. And when people Mhm. started their journey at 15 also, sir, there is no age bar for the for your startup or for the knowledge. That is why, that's why I'm asking more about how you, because I'm talking about risk. People get into money and they don't follow their passion. पैसा ज्यादा मिलेगा तो इंसान सोचते हैं कि भैया स्टेबिलिटी आ जाएगी. So when you started. Passion passion comes with knowledge. Yes. जैसा आपने बोला, you are having audience with age starting 15 to 60. जी. अगर जो 15-16 साल या जिस भी एज के अंदर में they want to start their business, the only thing what they should focus कि जिस भी प्रोडक्ट या जिस भी सर्विसेज के अंदर में वो एंटर करना चाह रहे हैं, they should have complete knowledge of that, पहला. एंड दूसरा, उनका इंटेंशन ये होना चाहिए कि by utilizing their knowledge वो किसी का फायदा कर रहे हैं, हाँ. वो किसी का नुकसान नहीं हो रहा. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग विच एनी एंटरप्रेन्योर शुड थिंक बिफोर स्टार्टिंग देयर बिजनेस. Exactly. एंड thirdly, groom yourself, do research, education, seminars, conclaves, attend those, so that नॉलेज लेने की कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है. यू शुड फोकस ऑन दैट. कितनी ऐसा केएफसी जिन्होंने शुरू की थी वो तो एज ऑफ 50 से भी अब थे, आई गेस, इफ आई एम नॉट यस, ऑलमोस्ट 60 प्लस. ऑलमोस्ट 60 प्लस. देयर इज नो एज व्हेन यू आर हमें यस, तो हमारे आएंगे 60 के होंगे, आपको लगा अब क्या ही करना है रिटर्न, बट नो. ही वाज गुड एट रोस्टिंग चिकन, तो उन्होंने वो काम शुरू करा. दैट वाज हिज नॉलेज, यस. उनका पैशन. यस. सही सर, बिल्कुल सही. मतलब बेसिकली दीज थिंग्स इंस्पायर्स पीपल टू स्टार्ट कि क्या हो गया, देयर इज नो एज. एज यू ऑल्सो स्टार्टेड योर यस. जर्नी Pesa.com, sir, you were also just wanted to follow your passion, which you already was following it and just want to give it your name, and you started it. एग्जैक्टली. Again, एग्जैक्टली. all the risk, because I've seen it. एक कंपनी में काम करके भी आप जब अपने कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हो तो यू सी एवरीथिंग, सो यू वर बेसिकली प्रिपेयर्ड मेंटली कि हाउ थिंग्स विल कम एंड हाउ यू गोना हैंडल, व्हिच बेसिकली इज अ मेरिट फॉर यू व्हाइल वर्किंग. यस. फॉर्चुनेटली आई वाज विद बैंक, तो देयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को शार्पन करूं. Yes. And after that, I utilize those information knowledge. Still, I attend conclaves, attend seminars related to my services, product, banks के, so that the information जो हम gather कर रहे हैं, that should be passed on to people with whom I am working with. बिल्कुल सही इसी सर. वजह से फिर मैगजीन का भी इसी वजह से, that was the only reason behind bringing MSME Insight magazine for MSMEs. Yes, sir. Sir, before ending the interview, I would just like you to give your like 1 minute, like it's your way, sir. Just आप एक अपना मिनट मुझे दे दीजिए, एंड आप हमारी ऑडियंस को जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, जस्ट वांट यू टू गिव देम अ बिट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग वट एवर दे आर डूइंग और व्हाट यू वांट टू से. आप अगर ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हो, 1 minute यू कैन से इट. आई वांट यू टू स्पीक. In 1 minute, I would like to say to every MSME, there is an opportunity lying ahead. अगला 10 साल MSMEs के लिए है. You just need to focus कि किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करें. And in the process of unleashing this potential of your business, you need any kind of support raising to related to raising any kind of funds. Seek a professional advice. आप बिना प्रोफेशनल एडवाइस के ना लें. who can help you understand your financial roadmap, who can help you understand what important is the credit worthiness in any business, who can help you identify best product or services from best bank or NBFC, and can help you get that for your company, for your business, so that you can expand your business. There is an article, मेरा एक
टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर में मैंने एक फ्रेमवर्क को लेकर के बात करी थी फॉर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। मैं वो फ्रेमवर्क एक ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा। बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन, यू शुड नो वेयर प्रिंसिपल, in which W stands for why you need a loan. You should identify that. Second, H, how you want to raise this loan. Either you can raise this through your family, friends, or bank, NBFC, or any investors. E, execution of that fund which you are availing. R is return on investment. That is more important. It is not you are just taking money and earning nothing out of that, or earning very small out of that. मोर इम्पॉर्टेंट है कि जितना आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसका 3 गुना यू शुड अर्न आउट ऑफ दैट इन दैट investment or that loan. And most important is exit strategy, because maximum MSMEs are into trap of CCOD, that is a viscous cycle. So you should know your exit strategy at the time of taking any kind of loan, how you will get exit from that particular loan. That is the most important thing. Thank you so much for this. That was very unique. I will, like after interview, I will just evaluate that also, and I'll gonna follow that also myself also. It was very Thank you. Thank you Thank so you. much, sir, for giving us your time. It will help our audience to brief themselves and groom themselves in future if they want to start their own company, or they already had started or just planning it. Thank you so much for guiding them, and thank you so Thank you. थैंक यू सो मच फॉर सीइंग आवर इंटरव्यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर आपको लगता है आपको कोई सवाल है जो आप हमारे गेस्ट मुकेश पांडे सर से पूछना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट टू अस बिलो। आई ट्राई कि मैं उनसे कम्युनिकेट करूं एंड जस्ट ब्रिंग द गुड आंसर्स फ्रॉम हिज साइड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पैसा लाइफ।